Assalamu alaikum my dear students. This is the lecture for class NEET and class 11 था. So आज हम बात करेंगे बेटा respiratory, excretory and nervous system of cockroach. So coming first the respiratory system. ठीक है बेटा. So when we talk about the respiratory system of cockroach, the system is known as tracheal system. So we can say that the respiratory system of cockroach is known as tracheal system. This tracheal system is made up of different components. The different components of tracheal system is there are openings known as spiracles. यानी जो tracheal system होता है इसमें जो different components होते हैं, first is known as openings जिनको हम बेटा spiracles कहते हैं. उसके बाद बेटा क्या होता है, there are tubes which are made up of chitin. They are known as trachea. उसके बाद बेटा क्या होता है, the trachea are further divided into smaller tubes known as tracheoles. ठीक है बेटा. अब हम देखते हैं कैसे. समझो हम थोड़ा सा यहाँ पे will take समझो this is the prothoracic, then the mesothoracic, then the metathoracic, then we have the abdominal organs, abdominal segments. So when we talk about this tracheal system, इसमें क्या होता है बेटा, there are actually 10 pairs of ओपनिंग्स जिनको हम बेटा स्पाइरिकल्स कहते हैं. ठीक है बेटा. अब ये स्पाइरिकल्स क्या होते हैं, ये होते हैं बिटवीन, इसमें जो 10 होते हैं ना, इसमें बेटा 2 पेयर होते हैं थोरैसिक में. वन इज बिटवीन प्रोथोरैसिक एंड मेसोथोरैसिक एंड अनदर इज बिटवीन मीजो एंड मेटा. ठीक है बेटा. सो ये हो गया एक वाला पेयर, ये हो गया दूसरा वाला पेयर. ठीक है बेटा. उसके बाद क्या होते हैं बेटा, बाकी जो 8 पेयर्स होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल सेगमेंट्स. यहां पे ठीक है. सो 1 से लेके 8 सेगमेंट्स ऑफ एब्डोमेन, देयर आर 8 पेयर्स एंड ट्रैकिया में, थोरैसिक में वी हैव 2 पेयर्स. सो टोटल में देयर आर 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स व्हिच आर एक्चुअली ओपनिंग्स. ठीक है बेटा. अब देखो होता क्या है, दिस इज दी, समझो दिस इज द ओपनिंग, थोड़ा मैंने इसको बड़ा किया. उसके बाद देयर इज, पहले थोड़ा सा यहाँ पे बैग जैसे स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. उसके बाद देयर आर ट्यूब्स, देन दे डिवाइड. समझो यहां से भी द फर्दर ब्रांचिंग्स ऑफ ये जो आफ्टर, सो दिस इज द स्पाइरिकल ओपनिंग, देन दिस इज कॉल्ड एज एट्रियम, देन दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकिया which is made up of chitin. Then these further branches are known as tracheoles. The further branches are known as beta tracheoles. And ये जो tracheoles होते हैं, ये ऑक्सीजन को लेते हैं. उसके बाद जो टिश्यूज होते हैं, समझो दिस इज द टिश्यू, यहां से ऑक्सीजन जाता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. So when summarizing the respiratory system, we can say that it's made up of a system known as tracheal system, which is actually made up of the openings known as spiracles, which are 10 in number, जिसमें 2 pairs होते हैं बेटा thoracic में, and the 8 pairs of spiracles are present in the abdominal segments. Then this opening leads to a sac-like structure known as atrium, which goes into a tube which is made up of chitin known as trachea, which further branches into tracheoles, through which the oxygen diffuses into the tissues. Right? This is about your respiratory system. And यहाँ पे बेटा आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो स्पाइरिकल्स की जो ओपनिंग है ना, that is under the control of sphincter. यानी sphincters जो होते हैं, they can regulate the entry or they can regulate the opening and closing of spiracles. ठीक है बेटा. So this was about the respiratory system. उसके बाद बेटा, now coming to the another system, that is excretory system.
that is excretory system. So when we talk about the excretory system of cockroach जो होता है, it actually excretes uric acid. So it's a uricotelic organism. So इसका माने हुआ बेटा, इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, that is actually uric acid. So it's a uricotelic organism. ठीक है बेटा. उसके बाद the main important excretory organs, they are known as Malpighian tubules. So the main excretory organs are known as Malpighian tubules. अगर आपको याद होगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो समझो this is the midgut. उसके बाद आपको पता है जो थोड़ा सा ये जो hindgut होता है it's wider. तो यहां पे आपकी you have large number of finger-like structures which are known as Malpighian tubules. Which are known as beta Malpighian tubules. ठीक है बेटा. So यहाँ पे there are finger-like projections which are known as actually Malpighian tubules. So what is actually we can say the function of these Malpighian tubules? Every tubule अगर हम इसका section काटेंगे ना, it's like this. On inner side there are cells. They are known as glandular cells and they are covered by cilia. So there are glandular cells which are covered by cilia. तो वो cilia थोड़ा वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से, क्योंकि इसकी दाएं बाएं इसकी जो लेफ्ट साइड से ना यहाँ से we have these spaces. So जिसके अंदर क्या होगा बेटा, hemolymph. So we can say that Malpighian tubules are surrounded by hemolymph, जो actually blood होता है जिसके अंदर waste material होता है. So they absorb the waste material from the hemolymph. यहाँ से blood waste material absorb करते हैं. उसके बाद that is actually goes here and with the help of vibration of the cilia, now the waste material comes and goes into the hindgut. So we can say that they collect the waste material from the hemolymph and then they shed that waste material into the hindgut through which it's excreted. So the main organs are known as beta Malpighian tubules. ठीक है, वो collect करते हैं hemolymph से that's blood. उसके बाद इसको डालते हैं बेटा hindgut में. ठीक है, so they are the main excretory organs. Other than Malpighian tubules, कुछ और structures होते हैं which are meant for excretion. One is known as beta fat bodies. ये actually cells होते हैं. Some of these are irregular cells. They store uric acids. ये uric acid को store करते हैं. उसके बाद क्या होते हैं, जब ये इनमें ज्यादा समझो आप लोड होता है ना यूरिक एसिड का, उसके बाद चले जाते हैं ये जो बॉडी का जो एक्सोस्केलेटन होता है ना, ये यहाँ पे we can say अलाइन होते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं और लाइन में बैठते हैं. जब कॉकरोच में एक प्रोसेस होती है जिसको बेटा हम मोल्टिंग कहते हैं. मोल्टिंग का माने हो गया बेटा जो ये अपना ये प्रोटेक्शन है इसको छोड़ता है, उसके बाद नया बनता है. सो द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन इज नोन एज मोल्टिंग. तो जब मोल्टिंग होती है ना, उसके साथ ये वे सेल्स भी बाहर आ जाते हैं. सो दे आर नोन एज फैट बॉडीज. इसी तरीके से एक और स्पेशल सेल्स होती है, दे आर नोन एज बेटा नेफ्रोसाइट्स. नेफ्रोसाइट्स भी पहले स्टोर करते हैं यूरिक एसिड को, उसके बाद वो भी बॉडी से फिर they are actually released from the body, so they are also acting as the excretory organs. उसके बाद बेटा कुछ glands भी होते हैं जिनका हम कल थोड़ा देखेंगे function when we talk about reproduction next lecture में. They are known as uricose glands. So uricose glands also have function in excretion. So excretion के लिए सबसे important structures है Malpighian tubules. उसके बाद next additional structures है we call fat bodies, nephrocytes and uricose glands. उसके बाद important चीज इसमें excretion में ये था कि they are responsible for secreting uric acid. So they are uricotelic. ठीक है बेटा. Now come to the last topic of today, that is the nervous system. So when we talk about the nervous system of cockroach, it's made up of collection of neurons. They are known as ganglion. So it's made up of ganglion or ganglia. Ganglia is plural now.
सो समझो आप बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो कंबाइन होते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गैंग्लियन, ठीक है, और इसको गैंग्लिया इसलिए बोला। तो उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट गैंग्लिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ganglions seen in case of cockroach. One is known as CNS and another is known as PNS. तो जैसे समझो इसका जो नर्वस सिस्टम है ना, दैट्स मेड अप ऑफ गैंग्लियन। उसके बाद इट्स डिवाइडेड इनटू टू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल में बाकी सारे नर्व्स आते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द CNS ऑफ कॉकरोच, इट इज मेड अप ऑफ टू गैंग्लियन। इसमें दो गैंग्लियन होते हैं। One is known as supraesophageal ganglion. Supraesophageal ganglion, and another is known as subesophageal ganglion. तो इसमें क्या होता है बेटा, समझो जो ईसोफेगस होता है ना, ईसोफेगस समझो, दिस इज द ईसोफेगस। ईसोफेगस के ऊपर एक बड़ा सा गैंग्लियन होता है। यूजुअली ये होते हैं पेयर्स में, लेकिन दे आर, वी कैन से दे आर जॉइंड। सो दिस विल बी कॉल्ड एज सुप्राईसोफेगल गैंग्लियन। ऊपर साइड से, इसके नीचे साइड से, ईसोफेगस के नीचे समझो, दिस इज द ईसोफेगस, इसके ऊपर कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है, दैट्स कॉल्ड एज सुप्राईसोफेगल गैंग्लियन। एंड इसके नीचे भी यहां पे है, दैट विल बी called as subesophageal ganglion। ये दोनों बनाते हैं आपका बेटा CNS। उसके बाद ये जो दो होते हैं, दे आर कंबाइंड, दे आर कनेक्टेड टुगेदर with the help of structure known as, this is known as beta circumesophageal commissure। So it's connected by circumesophageal commissure, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा जो PNS होता है ना, other than these two ganglion, there are 9 ganglion present। यानी बेटा और 9 गैंग्लियन होते हैं इसके, इन दो के अलावा बेटा, इसके बॉडी में, जिनको हम विच फॉर्म एक्चुअली द PNS, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, ये जो 9 गैंग्लियंस है ना, 9 गैंग्लियंस, इसमें से 3 होते हैं थोरैसिक में एंड 6 आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन। 3 आर इन थोरैसिक, 6 आर इन एब्डोमेन, ठीक है बेटा। आप देखो कैसे होते हैं, समझो यहां से ये है ना 2, उसके बाद थोरैसिक वाला होगा ऐसे, उसके बाद दूसरा वाला थोरैसिक में, उसके बाद तीसरा, उसके बाद होंगे एब्डोमेन के। एब्डोमेन में होते हैं कितने, 6 बेटा। पहले सेगमेंट में 1 2 3 4 5 एंड उसके बाद बेटा 6th में नहीं होता है, 7th में होता है। So we can say this is thoracic में पहला वाला, और यहां पे हम बना सकते हैं, so this is the first in, तो ये कनेक्ट होते हैं आपस में, ये कनेक्ट होते हैं बेटा, यहां से कनेक्ट, यहां से कनेक्शन। So ये हो गया फर्स्ट thoracic, सेकंड thoracic, थर्ड thoracic, फर्स्ट abdomen, सेकंड abdomen, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, लेकिन ये किस वाले में सेगमेंट में बेटा, 7th में, ठीक है बेटा। सो जो ये कनेक्ट होते हैं ना, सो वी कैन से दैट द सेगमेंटल, इनको हम सेगमेंटल गैंग्लियन बोलते हैं। सेगमेंटल गैंग्लियन आर कनेक्टेड बाय डबल nerve cord, so they are connected beta by double nerve cord, so they are called as segmental ganglion। तो जब हम ये जो हमारे पास गैंग्लियन होते हैं ना, इन गैंग्लियन से नर्व्स निकलते हैं। सो यहां से बेटा नर्व्स निकलते हैं। जो सुप्राईसोफेगल होता है ना, यहां से निकलते हैं 4 पेयर्स, 1 2 3 4, यहां से भी होगा, सो इट विल बी 4। ये जो 4 पेयर्स नर्व्स निकलते हैं ना यहां से, इनको हम याद रखते हैं ALOC। LOC आपको याद है, इसको A ऐड करना है। सो यहां से जो 4 नर्व्स पेयर जाती है ना, दे एक्चुअली सप्लाई द फ्रंट साइड ऑफ द कॉकरोच। One goes to the antenna, that is called as antennary nerve,
one goes to the upper lip, that's called as labral, one goes to optic, that's called as optic, that goes to the eyes, जिसको हम ophthalmic बोलते हैं और optic, and one goes to the neck, that is called as cervical, it goes to the neck, it supplies the neck. उसके बाद जो ये होता है ना सबइसोफेगल, यहां से 3 पेयर्स निकलते हैं बेटा, यहां से भी, and they supply the lower lip, that's the labial, maxillary and mandible. So इसको हम बेटा mandibular कहेंगे. So यहां से 3 निकलेंगे, labial, maxillary, mandibular. उसके बाद जो segmental है ना, यहां से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जो कि बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करते हैं. ठीक है बेटा. So this was about the nervous system. तो nervous system में हमने कहा it's actually made up of the ganglion. तो इसमें 2 ganglion है which form the central nervous system, supraesophageal ganglion and subesophageal ganglion. They are connected by circumesophageal commissure. उसके बाद there are 9 segmental ganglion. 3 are present in the thoracic and 6 are present in the abdomen. उसके बाद हमने कहा बेटा कि ये जो सुप्राइसोफेगल होता है, यहां से 4 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलते हैं, एंटीनरी, लेबरल, ऑप्टिक एंड सर्वाइकल. उसके बाद सब से निकलते हैं 3, लेबियल, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर. दे सप्लाई द रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स. उसके बाद जो सेगमेंटल है वहां से भी नर्व्स निकलती है जो बाकी बॉडी को बेटा सप्लाई करते हैं. ठीक है बेटा. सो दिस वाज अबाउट द नर्वस सिस्टम. सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हिच इज एक्चुअली द ट्रैकियल सिस्टम. उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें सबसे प्रिंसिपल है यूरिकोटेलिक एंड द ऑर्गन्स आर नोन एज माल्फीजन ट्यूब्यूल्स. उसके बाद दिस वाज अबाउट द नर्वस सिस्टम जिसमें हमने कहा इट्स एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ गैंग्लिया. ठीक है बेटा. सो इस नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दी रिप्रोडक्शन. उससे हमारा कॉकरोच कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है बेटा. इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना. इसकी डायग्राम्स आपके टेक्स्ट में नहीं है, सो इसलिए डायग्राम को ड्रॉ करना, कॉपी में नोट करना. ठीक है बेटा. ओके, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.